Assalamu alaikum for class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 1, Pippi Longstocking. Unit number 1, Pippi Longstocking. Students, as you all know that we have completed the whole reading of this unit, and question number A, part 1, part 2 and part 3 in our previous lectures. Okay, today we will do question number B, C. Okay, question number B, C. But before going to start my today's lecture, I want to announce the names of students who gave me the answer of my question. So, Hashir Munir, Adil Manaf and Shamir Tariq. Hashir Munir, Adil Manaf and Shamir Tariq. So students, you are doing well. Well done. Excellent work. Keep it up. So let's start our today's lecture. Question number B, working with words. Use the following words and phrases from the passage in sentences of your own. So students, here are some words and phrases. You have to use them in sentences of your own. यहाँ पर students कुछ words और phrases दी गई हैं, आपने उनको अपने sentences में use करना है. I'll just tell you the meaning of these words and phrases. You have to learn sentences from your notes. Okay, आपने notes से अपने sentences को learn करना and try to make sentences of your own. यानी खुद से sentence बनाने की कोशिश करें. It's not necessary to learn the same sentences as we have written in your notes. No, it's not necessary. Students, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने notes में आपको sentence लिख दिया वही ठीक है, उसके अलावा आप नहीं बना सकते. No, you have to make sentences of your own. आपको खुद से sentence बनाने हैं. अब मैं आपको just meaning बताऊंगी, आपने notes को follow करना है या मीनिंग को समझ लेना है, देन आपने खुद से बनाने की कोशिश करनी है सेंटेंसेस. ओके, बल्कि आपने मुझे सेंटेंसेस जो हैं जो नोट्स पे लिखे हैं वो नहीं, खुद से सेंटेंस बनाकर मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने इस वर्ड का ये सेंटेंस बनाया, इस फ्रेज़ का मैंने ये सेंटेंस बनाया है. एंड स्टूडेंट्स, जब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर करें तो काइंडली प्लीज़ राइट योर नेम. ओके, अपना नेम ज़रूर मेंशन किया करें, फुल नेम. ओके, लेट्स स्टार्ट. नंबर ए, स्टेप्ड आउट. स्टेप्ड आउट मीन्स टू कम आउट फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी रूम से बाहर आना, डोर से बाहर आना. ठीक है, स्टेप्ड आउट. हैड नो आइडिया, किसी बात का कोई आपको अंदाज़ा ना होना. ओके, हैड नो आइडिया. Wondering whether. Wondering whether means that you are confusing between two things, that what you have to choose. यानी आप दो चीज़ों में confuse हैं कि मुझे कौन सी चीज़ जो है वो choose करनी चाहिए. That so wondering whether. You are wondering whether. Grow into. Grow into means आगे बढ़ना. ठीक है, तरक्की करना. Gathered, इकट्ठे हुए. It must be admitted. Admitted means आप किसी बात को मान लेना. ठीक है, it must be admitted कि किसी बात को मान लेना. Remarkable means noticeable, यानी गैर मामूली, जिस चीज़ को किसी चीज़ को नोटिस किया जाए. Very important thing. नेक्स्ट, यू कैन बी श्योर. यू कैन बी श्योर, आपको किसी बात का पक्का हो, मतलब यकीन होना चाहिए कि ठीक है, यू कैन बी श्योर. नेक्स्ट, पोलाइटली. पोलाइटली मीन्स शाइस्तगी से, अदब से. ओके, अदब. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट 1. Fill in the blanks in the following. The first one has been done for you. Actually, these are participles. Participles are second and third forms of verbs. Okay, verb की second and third form को participles कहते हैं. So we have to write second and third form of these verbs. Break, broke, broken. Break mean तोड़ना. Broke, तोड़ा. Broken, तोड़ चुका. Go, went, gone. Stream, बहना. Stream, बहना. Streamed, streamed. Streamed, streamed. Say, कहना. Said, said.
show, showed, shone. S-H-O-W-E-D, showed is second form. Shone, S-H-O-W-N, shone is the third form. Cheat, cheated, cheated. Hear, heard, heard. Spread, phailna, spread, spread. So spread, 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 they are same. Okay, come to next question. Articles, 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 students. A and the, a and the, they are articles. Actually articles are determiners. यानी articles जो determiners होते हैं, यानी किसी चीज़ को determine करते हैं. कोई चीज़ a and the बेसिकली कब determine करते हैं? a हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, यानी अगर वो एक है, ठीक है, to show its quantity, यानी एक है, then we will use a. and हम तब यूज़ करते हैं जब जो वर्ड है जिसके साथ हमने एन यूज़ करना है उसकी जो साउंड है, स्टार्टिंग साउंड वॉल साउंड होती है, वॉल्स. ओके, तब हम एंड, लाइक एप्पल, एप्पल, अ साउंड इज अ वॉल साउंड. ओके, सो वी यूज़ एन एप्पल, नॉट अ एप्पल. नो, इट्स इनकरेक्ट. यानी वॉल साउंड्स, जो जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग साउंड जो वॉल्स से स्टार्ट होती हैं, वी यूज़ एन विद दैम. देन दी हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी को पर्टिकुलराइज करना होता है, स्पेशलाइज. यानी दी बुक, यानी हम कहते हैं ना द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, यानी टेबल पर पड़ी वो किताब मेरी है. यानी जब हम पोजेशन शो करते हैं कि मतलब बताते हैं, वर्टिकुलराइज करते हैं कि टेबल पर पड़ी जो किताब है, ठीक है, द बुक ऑन द टेबल, सो देन वी विल यूज़ दी. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ब्लैंक्स हैं इनमें कुछ में आर्टिकल्स यूज़ होते हैं, वहाँ पर हम लगाएंगे, लेकिन कुछ जो ब्लैंक्स हैं वो कंफ्यूज करने के लिए, उनमें कोई आर्टिकल नहीं आता, उन्होंने जस्ट आपको चेक करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ब्लैंक्स जो हैं वो बनाए हैं. सो वंस अपॉन अ टाइम, डेफिनेटली टाइम के साथ आ यूज़ होता है. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यानी एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था, एक बादशाह रहता था. Who was a fine man, जो कि एक बहुत नेक आदमी था, a fine man. Then the, you will write T capital because here new sentence is going to start. The kingdom he ruled, सल्तनत जिसमें वो जो है वो राज करता था, was blank है, was very happy. In this blank नो, ये ब्लैंक आप यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. द किंगडम ही रूल्ड वॉज वेरी लार्ज, सल्तनत जहाँ वो राज करता था वो बहुत बड़ी थी. एंड ऑल द पीपल, यस यहाँ पर दिया आएगा, यानी उस सल्तनत के लोग, ठीक है, द पीपल, ऑल द पीपल हु लिव्ड इन इट, और जो लोग वहाँ रहते थे, वर हैप्पी एंड प्रॉस्परस. सो इन दिस ब्लैंक there will be no article. ओके, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. were happy and prosperous, कामयाब, prosperous मीन कामयाब, सक्सेसफुल, और वहाँ के जो लोग भी रहते थे, वहाँ जो रहने वाले लोग थे वो भी खुश थे और कामयाब थे. one day, एक दिन, a great flood, flood कहते हैं सैलाब को, a great flood of blank, ये confusing blank है, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा, of water came pouring down from the mountains and swept away the palace and most of the city. यानी एक दिन जो है वो एक बहुत बड़ा सैलाब आया, पानी का सैलाब आया. कहाँ से? pouring down from the mountain, यानी पहाड़ों से नीचे आया, और उसने पैलेस कहते हैं महल को और बाकी पूरे शहर को बहा कर ले गया. मैनी ऑफ द पीपल वर ड्रोन्ड, यानी बहुत से लोग उसमें डूब गए. ड्रोन्ड मीन डूब जाना. बट द किंग सेंट his army and carried everyone to some high ground. जी यहाँ पर भी कुछ नहीं यूज़ होगा.
यानी जो कि बादशाह था उसने अपनी आर्मी को भेजा, किस लिए भेजा, एक टू कैरी एवरीवन, मतलब हर किसी को उठाने के लिए, वहाँ से बचाने के लिए, ताकि वहाँ से बचाकर उनको किसी ऊंची जगह पर पहुँचा सकें. इन दिस वे ही सेव्ड मैनी पीपल फ्रॉम डेथ. सो ये ब्लैंक्स भी नो, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. उसने फिर काफ़ी लोगों को मौत से बचा लिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग हु और विच. हु और विच. सो स्टूडेंट्स, हु हम यूज़ करते हैं ह्यूमंस के लिए, ठीक है. ह्यूमंस के नेम के साथ हम हु यूज़ करते हैं. विच वी यूज़ विच फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स नेम. यानी नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के नेम के साथ हम विच यूज़ करते हैं, ठीक है. यहाँ पर कुछ सेंटेंस है. दिस इज़ द डॉग, इट हैज़ अ स्ट्रेंज नेम. यहाँ पर डॉग लिखे है, सो वी विल यूज़ विच. नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपने वहाँ से फॉलो करना है. दिस इज़ द बिन, द डॉग टिप्ड इट ओवर. bin is a non-living thing, so we will use which. This is the teacher, she told the boys to be quiet. ठीक है, teacher is a मतलब लिविंग है, so we use who. यदि हमने who और which से इन सेंटेंसेस को मिला देना है, एक सेंटेंस बनाना है. Then these are the children, they are throwing water at us. So children ये भी लिविंग है, so we will use who. This is the fence, they looked over it. Fence है, so fence is a non-living, we will use which. This is Mohit, he lives next door. Mohit is a name of person, so we will use who. This is the cat, it comes into our house every night. So cat is an animal name. Animal name है, so हम इसके साथ which use करेंगे. बन क्या जाएगा? This is the dog which has a strange name. This is the bin which the dog tipped it over. This is the teacher who told the boys to be quiet. These are the children who are throwing water at us. This is the fence which they looked over it. This is Mohit who lives next door. This is the cat which comes into our house every night. Okay, next question is nouns. Underline the nouns in the following sentences. Students, nouns जो है वो किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, ठीक है. सो आपने यहाँ इस पैसेज में इन सेंटेंसेस में से खुद नाउन्स जो हैं वो अंडरलाइन करने हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन कॉल्ड रमीज़. ठीक है, अब इनमें से आपने उनको अंडरलाइन कर देना है. रमीज़ पर्सन नेम है, ये भी नाउन है. मैन भी जो है वो भी नाउन है. और भी जो नेम आ जाएगा किसी चीज़ का नाम, उसको हम नाउन बोलेंगे. एंड यू हैव टू अंडरलाइन इट. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने ज़रूर करना है. मुझे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस ज़रूर बताने हैं, ठीक है, लिख के देने हैं कि मैंने ये सेंटेंस बनाया इस वर्ड का. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.